Hi everyone, hi Yatharth. Welcome to Sampark, an initiative by Phenom Placement, where we interact with CA professionals and share their experiences and viewpoints with our new CA aspirants. So today we have with us Mr. Yatharth with AIR 32 from December 2021 batch. So congratulations, Yatharth. How does it feel? It actually feel like it's been almost an year that we got our results and now we are into our jobs and taking our career forward. But definitely every attempt when a new batch comes and whenever the results come and we again get those chills a day before ICA makes its announcements that results is gonna come, and we again relive all those moments, and it again gives us that special feel that we actually did something which made our family proud and all those things. So definitely it still gives that spike of excitement and that happiness. So, yeah. जब आपका रैंक आया, so आप शॉक थे या फिर you already knew कि आने वाला है रैंक? So to be honest, so because मेरी IPCC में भी रैंक थी AR22, so definitely जब एक बार आपकी रैंक आती है तो नेक्स्ट लेवल पे भी आप खुद से भी एक्सपेक्ट करते हो एंड आपकी फैमिली सोसाइटी वगैरह भी आपसे एक्सपेक्ट करती है, एंड डेफिनेटली फिर आप जब प्रिपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आप कितना पानी में हो कितने में नहीं हो. सो वाइल प्रेपरेशन, यस, माय टारगेट वाज अ रैंक एंड मॉक टेस्ट वगैरह दिए तो इवेंचुअली आई वाज कि ठीक है कंफर्टेबली रैंक आ जाएगी. अब कौन सी आएगी, सिंगल डिजिट डबल डिजिट, दैट वाज थोड़ा सा वैसा, बट हाँ, आई वाज एक्सपेक्टिंग वन. So how was your family's and friends' reaction towards that? कि भाई पहले 22 थी अब 32 हो गई. Oh, it's not Pardon? bad. No, definitely it's not. I'm just on a lighter note, but definitely they were very, very happy because, in CA we do understand, getting ranks in both the levels is, not a very easy task. A lot of time, a lot of luck plays an important role. So there are different factors which are not in our hands. So definitely a rank is a rank, and the number which you get, like the digits, is of no use. Like no one asks कि कौन सी rank है. People are concerned कि rank है या नहीं है. So definitely. So let's just start with your strategies and your journey of whole CA. People hearing, I believe most of them would be right now in their articleship phase. So probably I'll, try to give them a gist about that on a long-term basis. So I did my articleship from KPMG for an year, and then I did my articleship from EY for the next 2 years. Bringing this up because there is this conception कि if you do your articleship in a big four, then probably आपको work life balance नहीं मिलता, आप पढ़ाई manage नहीं कर पाते and all those things, but वैसा नहीं है. आपको करना है, आप कर सकते हो. Definitely seasons में थोड़ी problem होती है. तो how I went about my studies once I started my articleship, पहले 1 साल I focused on work कि क्या नया कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें कैसे काम हो रहा है, क्या ऑडिट, क्या ट्रांसफर प्राइसिंग, क्या वो सारी चीज़ें देखी. एंड इवेंचुअली आफ्टर एन ईयर, लाइक ऑलमोस्ट 8-9 months after starting my articleship, I started with my first class. That was SFM, Strategic Financial Management. क्लासेस के वक्त व्हाट माय टारगेट वाज कि जितना क्लास में हो रहा है उस पे मेरी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए. ये नहीं कि क्लास में जो समझाया मुझे समझना है, पहला. सेकंड, जो क्लास में पढ़ाया अब मैं 2 साल 3 साल बाद फाइनल्स दूंगा, तो उस टाइम अब मैं डायरेक्टली बुक्स खोलूंगा तो अपनी नोटबुक में अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से चीजें ऐसे लिख लो कि वो पढ़ के आपको कॉन्सेप्ट वापस आपके दिमाग में बैठ जाए. एंड मोर इम्पोर्टेंटली लेक्चर्स मिस नहीं करने, और अगर मिस हो भी रहे हैं या कुछ भी अगर ऐसा अप डाउन हो भी रहा है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके नोट्स वगैरह सारे कंप्लीट है, कि जब आप स्टडी लीव्स में जाओ फाइनल्स के टाइम तो ऐसा ना हो कि यार मेरे तो नोट्स इनकम्प्लीट है. तो वो सारी चीजें आई यूज टू मेक श्योर कि भाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, आगे जाके ये ना हो कि कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहे वगैरह. तो दैट आई मेड श्योर. आई स्टार्टेड विद एसएफएम, देन आई पिक्ड एफआर, देन आई पिक्ड कॉस्टिंग, बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में डेफिनेटली अमेंडमेंट्स थोड़े कम होते हैं कंपेरेटिवली. Then I picked law audit, and then last में DTIDD, and then elective में I chose GFRS. So I targeted कि मेरी क्लासेस एग्जाम के scheduled एग्जाम के 6 महीने पहले कंप्लीट हो जाए, और उसी 6 महीने के पहले पहले लाइक बिफोर आई एंटर माई स्टडी लीव्स क्लासेस सारी कंप्लीट हो जाए. जो GMCS और एडवांस ITT वगैरह ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट हो जाए, आर्टिकलशिप का टेस्ट और जितनी भी छोटी मोटी चीजें वो सब कंप्लीट हो जाए, कि 6 महीने मेरे पास प्योरली सेल्फ स्टडी के लिए हो. दैट वाज माई एम एंड दैट वाज माई टारगेट. सो आफ्टर सो आई कुड समहाउ थोड़ा बहुत खींचना पड़ा, लेक्चर्स 2x पे देखने पड़े, स्पीड बढ़ा बढ़ा के, एंड वो चीजें होती है. बट अल्टीमेटली आई कुड रीच उस 6 months के स्टडी लीव्स के फेस में विथ माई ऑल माई क्लासेस कंप्लीटेड, विथ ऑल माई ट्रेनिंग्स डन एंड ऑल दोस थिंग्स. सो अब मेरे पास 6 महीने प्योर स्टडीज के थे. नाउ डाइविंग इनटू हाउ आई टैकल्ड माई स्टडी लीव का फेस, आई डिवाइडेड दैट फेज इनटू सब्जेक्ट्स. कैसे मैंने करा कि
सो एक जो सीए में आजकल होता है कि वंस यू एंटर द सीए फ्रेटर्निटी, अगर आप 12th तक आप देखोगे, 10th 12th, तो आप 12th में बोर्ड्स देते हो, 10th 12th में बोर्ड्स के पहले आप स्कूल में प्री बोर्ड्स देते हो। आजकल स्कूल वाले 2 बार प्री बोर्ड्स लेते हैं। इन सब के अलावा बोर्ड्स देने के, स्कूल के प्री बोर्ड देने के अलावा आप क्लासेस लेते हो। क्लासेस में वो लोग पता नहीं आपके कितनी बार बोर्ड्स लेते हैं, कितनी बार मंथली टेस्ट लेते हैं। सो वी आर accustomed to give a lot of practice tests before appearing for the final exams, but somehow after you complete your 12, when you enter the CA ka examination and stuff, you somehow discontinue that practice of giving those mock tests. So वो एक मेरे को बहुत बड़ा लैक लगता है जो आजकल पता नहीं स्टूडेंट्स क्यों नहीं करते हैं। सो दैट आई मेड श्योर कि मैं स्टडी लीव्स में मॉक टेस्ट में देता हूँ, बिकॉज आप 3 साल आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपको 3 घंटे नॉन स्टॉप लिखना, पेन यूज करना, कैलकुलेशन, हैंड राइटिंग, स्पीड, थक जाना, ये सारी चीजें आपको वापस एक नई तरीके से आपको स्टार्ट करनी पड़ती है। पहला। सेकंड, मॉक टेस्ट से आपको यार आपका ये भी पता चलता है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, कौन सा आपका क्या कम ज्यादा बहुत सारा, और वो 3 घंटे कैसे टैकल करने होते हैं, रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, वो सारे छोटे मोटे न्यूएंसेस जो सारे आपके एक ब्रश अप हो जाते हैं। सो हाउ आई डिवाइडेड वाज, वी हैव 8 सब्जेक्ट्स, राइट? सो पहला मैंने 2 राउंड्स ऑफ मॉक टेस्ट दिए, हर सब्जेक्ट के 2-2 फुल सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट दिए। पहला राउंड मैंने एवरी 10th डे आई यूज्ड टू गिव मॉक टेस्ट ऑफ 1 सब्जेक्ट। तो 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट को 10 दिन, तो 80 दिन, यानी लगभग 3 महीने। तो बिकॉज माई अटेम्प्ट वाज December 21, आई स्टार्टेड दिस थिंग फ्रॉम जून। तो जून, जुलाई, अगस्त 25th अगस्त के आसपास मेरा पहला सीरीज ऑफ मॉक टेस्ट खत्म हो गया। 80 दिन मेरे लगभग 3 महीने चले गए। इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट एक साथ कर लिया और एक बार सबके टेस्ट दे दिए, तो आई हैव द कॉन्फिडेंस, एंड मेरे को पता है कि कौन से मेरे वीक एरियाज एंड किस में मैं क्या काम करना है। फिर मैंने सेकंड राउंड चालू करा, वापस मॉक टेस्ट दिया, बट इस बार मैंने हर सब्जेक्ट 5वें दिन में दिया। एवरी 5th डे आई यूज्ड टू अपीयर फॉर अ मॉक टेस्ट, फुल सब्जेक्ट। एंड सो अगेन 8 सब्जेक्ट से 5 दिन, यानी 40 दिन, लगभग 1.5 महीने। तो सितंबर अक्टूबर, तो मिड अक्टूबर तक मेरे दोनों मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गए। मतलब मैंने हर सब्जेक्ट 2 बार पूरी तरीके से कर लिया, पहला। सेकंड, प्रैक्टिस हो गई, वो सारी चीजें आपको हो गई, आपको वीक पॉइंट्स ये वो पता है। एंड उसके बाद, क्योंकि यूजुअली एग्जाम्स नवंबर में होते हो, तो हमारे टाइम दिसंबर में थे, तो वी वर फॉर्चुनेट टू गेट अनदर 30 days extra which we could do for whatever. बट वो 15 डेज, जो 15 अक्टूबर से नवंबर आपके एग्जाम्स अगर चालू हो रहे, जो आइडल सिचुएशन होगी, आप फिर उन 15 डेज को यू कैन यूज टू ब्रश अप जो जो आपको लगता है वीक पॉइंट्स है, कि ये इंडेक्स में आप कंफर्टेबल नहीं हो, ये प्रोविजंस में आप कंफर्टेबल नहीं हो, देन दोस 15 डेज कुड बी यूज्ड फॉर योर टच अप का काम वाली चीज, एंड देन यू कैन अपीयर फॉर योर एग्जाम. सो दिस इज हाउ आई ब्रॉडली डिवाइडेड माय entire study leaves ka part and stuff. The overall map of your plannings and strategies. It was really crystal clear. Okay, so talking about the strategies, what was your strategy for choosing your ICI campus? ICI campus, so it again would be very varied for students who end up with a rank and students who just clear without a rank. Talking first about rankers, so definitely we have Phenom placement, which usually brings all the ranker exclusive profiles. So there is so this again becomes a, for us as students, it becomes really easy to get all the rank exclusive opportunities on one platform. We get a WhatsApp group created by Phenom, I believe, and then all the job opportunities, all the formalities, all those things happens to one platform, which makes our lives easier. Pehla. Second, ICI campus, definitely there are a few companies which come through ICI campus for rankers, and thirdly, there are some other agencies also which give some opportunities. So there are 2-3 placement cells through which where which if you register, your life would be easy. So that was my strategy. No particular, strategy, but yeah, I just made sure that I can give as many interviews as possible to learn and to, gather some experience. So yeah. Okay, okay. तो अब आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, तो आई एम श्योर कि अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे. So Right. would you put any light on this area? So ups and downs definitely, मतलब हर जगह होते हैं. So I guess मेरा सीए में घुसना ही एक बहुत बड़ा रोलर कोस्टर था. So 2 आईपीसीसी में रैंक है, फाइनल्स में रैंक है, अंडरस्टैंड, बट me choosing CA was a big decision for myself. Reason being कि मैं कोई वो ऐसा वो bookworm नहीं हूँ. I'm not a पढ़ाई वाला बच्चा. 10th में भी 80-85%, 12th में भी 80-85%, not a scholar की भाई 95-99 वाला नहीं. But still, choosing a CA and then choosing CA as a career, and then taking it forward, ending up with a rank and all those things. So definitely up and down stay. Maybe a situation like in particular, I guess, initially during my study leaves, I got contact with COVID-19. My family got contact with COVID-19, and there were some serious issues. There was some hospitalization at my, close family. So definitely that was thoda sa disturbing period. You cannot really, focus on your studies. You'll have to take other responsibilities. You'll have to manage a lot of things. Me being the elder son of the home, so all those things were there. But somehow, when you're, your want to clear CA is strong, so I guess all these things are manageable. So Yeah, yeah. determination
what matters, Definitely. Yeah, So like, the stronger why becomes to become a CA, the mm, easier your how to become a CA gets. So yeah. okay, so your family must have contributed some amount of, credibility. So what was Definitely. So I guess, so usually study leave we study at our homes, right? Like we spend that time with our home. So अगर घर पे वो पढ़ाई का environment नहीं है, सो आप yes, कितने ही सिंसियर हो, कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम्स आने ही लगती है. सो डेफिनेटली अगर मैं पढ़ पाया 12 घंटे 15 घंटे या जितने भी, तो दैट वाज पॉसिबल बिकॉज मेरे को एनवायरनमेंट घर पे मिला. अब एनवायरनमेंट मैं एक अकेला क्रिएट नहीं कर सकता, उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर्स जिसके लिए वो एनवायरनमेंट बन रहा है उसको छोड़ के बाकी सबका होता है. तो डेफिनेटली yes, देयर वर अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस फ्रॉम माय मॉम डैड माय सिस्टर. टीवी बन, ये बन, डिनर फटाफट, ये वो, देयर वर अ लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हिच यूजुअली डू. कि गेस्ट आते हैं तो उनको एकदम चुप करके एक साइड में रख देना, या फिर मना ही कर देना, या बोल देना हम आ जाते हैं. नवंबर होता है तो दिवाली आती है, देयर आर लॉट ऑफ फेस्टिवल्स व्हिच कम इन. मे वालों के लिए होली बीच में आती है, बट फैमिली सैक्रिफाइस देयर फेस्टिवल्स सो दैट टू गिव मी दैट एनवायरनमेंट. एंड मेरे को फोमो ना हो जाए कि यार वो लोग तो मस्ती कर रहे हैं बट मैं नहीं कर रहा. सो उन्होंने भी छोड़ दिया कि नहीं हमें भी कुछ नहीं करना. एंड ऑल द स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हिच डेफिनेटली एड्स अप टू योर ओवरऑल प्रोसेस. like टीवी की आवाज बंद कर दो, धीरे बोलो. टीवी बंद, टीवी का कनेक्शन ही बंद, वो जो टाटा स्काई में रिचार्ज वगैरह करवाते हैं वो ही बंद. Great. अब आप मतलब क्या कहना चाहेंगे एंड अबाउट योर होल सी जर्नी? सो यू आर ऑब्वियसली प्राउड ऑफ दैट. सो आफ्टर दैट व्हाट डिड यू परस्यू, लाइक व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? So right now I am working at Mahindra Leadership Program. That again I got through Phenom placement. So yeah, that's about it. Talking about Mahindra GMC program, which they call it the leadership program. So again, it's a typical management trainee program where we get 4 different stints of 3 months each, and we are required to spend 3 months in different companies of different sectors and industries. That is one of the best or the plus points or USP of the Mahindra program. That बाकी कंपनीज में आपको सिर्फ एक ही सेक्टर का एक्सपोजर मिलेगा. आप एफएमसीजी में हो तो सिर्फ एफएमसीजी, बट यहाँ पे मैं ऑटो भी कर रहा हूँ, मैं फार्म भी कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटैलिटी भी कर रहा हूँ, मैं अलग अलग बाकी सारे टाइप के सेक्टर्स का एक्सपोजर मेरे को मिल रहा है. सो दैट डेफिनेटली एड्स अप टू द यूएसपी ऑफ दिस प्रोग्राम. ओके, सो लाइक अभी हमने आपकी फैमिली के बारे में बात करी. सो अब ऐसे तो नहीं हो सकती कि हम उनको पूरा ही अवॉइड कर दें. हमको भी थोड़ा सा Right. एंटरटेनमेंट चाहिए to buckle up, not get Right. stressed out studies. Right. So how do you like balance between your articleships, your studies, and your family? ओके, सो टेकिंग दम इंडिपेंडेंटली आर्टिकलशिप एंड पढ़ाई में अगेन वही कि सुबह सुबह उठ के लेक्चर्स देख लो या रात को ऑफिस आके लेक्चर्स देख लो. चॉइस इज योर्स. इफ यू आर अ लेट नाइट किड तो आप रात को देख लो, नहीं तो आप सुबह सुबह अगर 6-7 बजे उठ सकते हो तो वो कर लो. जस्ट मेक श्योर आप लेक्चर्स कंटिन्यूअसली देखते रहो. एंड फैमिली और पढ़ाई के बीच में बैलेंस बनाना अगेन डेफिनेटली, उसमें भी आई गेस फैमिली का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है. रीजन बीइंग कि दे डोंट एक्ट इन अ मैनर कि उनको दे वोंट शो कि यार हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे. हम अगर सपोज दिन में सिर्फ 2 मिनट भी उनके साथ बैठ रहे हैं तो दे आर लाइक कि भाई सब नॉर्मल है. नहीं तो कई बार होता है ना कि इफ दे डोंट गेट अटेंशन और इफ दे डोंट गेट योर टाइम, तो एक वो आ जाता है कि क्या है दिन भर ही. सो हाँ, दो सॉर्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड खुद भी चीजें ना करना सो दैट आई डोंट गेट दैट फोमो वाली थिंग एंड ऑल दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स डेफिनेटली वैसा था. एंड मेरे साइड से व्हाट आई डिड टू मेक बैलेंस वाज कि जो अब आप डेफिनेटली अगर आप 15 घंटे पढ़ रहे हो तो आप एक शॉट में 15 घंटे नहीं पढ़ सकते, राइट? यू नीड सम स्मॉल आइस ब्रेकर ब्रेक्स. सो वो टाइम जो मतलब मैं सपोज मैं हर 2-2 घंटे में 5-10 मिनट का ब्रेक लेता था, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग माई मोबाइल फोन और गेटिंग ऑन सम सोशल मीडिया साइट्स, आई यूज्ड टू स्पेंड दैट टाइम विद माई फैमिली. yeah, सो उससे आगे मेरे को जो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता था कि सोशल आप फेसबुक इंस्टा खोलोगे तो यार एक डिस्ट्रैक्शन का भी एक सोर्स होता है वो. एंड सेकंड यू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, सो दैट अगेन गिव्स यू मोटिवेशन. एल से मैं 5-5 मिनट वो मोटिवेशन लेने जाता था. सो अगेन दैट हेल्प्स. yeah. इवन इससे मोटिवेशन के साथ साथ हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है. 10 मिनट में पूरा फ्रेश. ट्रू. We have got some really good strategies and overall planning for a whole CA journey. One last thing, that would you like to say anything to our new coming CA aspirants? Look for a reason why you want to get that degree so hard. It can be money. It definitely should be money. I guess money would be one of the biggest reasons because this is the most highest paid degree. Like once you become a chartered accountant, your incomes can be at any levels. Sorry. I'm saying it is reputed too. You are getting reputation and the money all together. Definitely. You get reputation, respect from society. All those things do come. आपको शादी करनी है, आपके बायोडाटा में आपने सीए डाल दिया, आपको रिश्ते अच्छे मिलने लग जाएंगे. तो that again can be a motivation, right? Look for a reason why you want to actually pursue it. Just don't do it for the sake of doing it. आप सीरियसली करोगे, अगर मोटिवेशन आ गया, अगर आपको एक्चुअल रीजन मिल गया फॉर व्हिच यू आर परसुइंग, तो बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना विल बिकम ईजियर फॉर यू. फोकस इज द की.
डिसिप्लिन इज द की आई से। अगर आप डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन तभी आएगा जब आपको मजा आ रहा है, मजा तभी आएगा जब आपको जो पाना है आपको उसके आप करीब जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू बाय मर्सिडीज, मर्सिडीज के लिए नीड मनी, मनी के लिए हैव टू नीड अ डिग्री, डिग्री के लिए आपको सीए के एग्जाम्स पास करने पड़ेंगे, एग्जाम पास करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मर्सिडीज के लिए पढ़ना है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपको मर्सिडीज के लिए काम करने में मजा आ रहा है तो आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, एंड मजा आ रहा है तो आप चीजें कर लोगे। ओके सो या ओके ग्रेट। अभी मजा आ रहा है तो भी मजा ही आएगा ऑब्वियसली। डेफिनेटली और डेफिनेटली कुछ साल फोकस होके पढ़ लिया जाए तो। ट्रू ट्रू या इट्स अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स। अब सब डिस्ट्रैक्ट सब कट 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 करा के एक बार आप सीए बन गए तो अगेन दुनिया कहीं नहीं जा रही, जो जहाँ है वो वहीं है, सब चीजें हो जाती है आगे जाके। सो या Yatharth, so that was it for the interview. And it was थैंक यू सो really good talking with you. And thank you so much for taking out your time and providing such a valuable points to us.